Good morning, dear students. Physics Standard 12 Science, Chapter number 8. In last lecture, we can discuss exercise 8.5, 8.6 and 8.7. Now today, we have discussed exercise 8.8. Suppose that the electric field amplitude of electromagnetic waves is E naught is equals to 120 Newton per Coulomb and that its frequency is 50 megahertz. So first is determine B naught, omega, K and lambda. B naught is the amplitude of magnetic field, omega is angular frequency, K is a proportionality constant, K is a wave vector and lambda is a wavelength. So first of all we have find B naught. So second characteristics of electromagnetic wave, C is equals to E naught by B naught. So B naught is equal to E naught by C. E naught is 120 and C is the velocity of light, 3 into 10 raised to 8. So answer is 40 into 10 raised to minus 8 Tesla. Now we can find omega, angular frequency omega equals to 2 pi f, या 2 pi nu. 2 into 3.14 and frequency is 50 megahertz. So here 10 raised to 6. So answer is 314 into 10 raised to 6 radian per second. Velocity of light का दूसरा इक्वेशन है c is equals to omega by k. So k is equal to omega by c. Omega is equal to 314 into 10 raised to 6 divided by velocity of light 3 into 10 raised to 8. Answer is 104.67 into 10 raised to minus 2. That means 1.05. तो ये वेव वेक्टर मिला, उसके ऊपर से लैम्बडा मिल जाएगा. K is equal to 2 pi by lambda. So lambda is equal to 2 pi by K. 2 into 3.14 divided by 1.05. तो आंसर इज 5.999 यानी अप्रोक्सीमेटली 6 meter. Approximately 6 meter. Now electric field E vector is equal to E naught sin kz minus omega d. E naught is equal to 120 sin k is equal to 1.05 z minus omega is equal to 314 into 10 raised to 6 t I cap Newton per Coulomb. तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा डी एंड बी नॉट इज फाइन किया. बी नॉट इज इक्वल टू 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 साइन 1.05 जेड माइनस 314 इंटू 10 रेज टू 60 एयर आई कैप. सी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज जेड एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड के पीछे क्या आएगा? जे कैप टेस्ला. तो ये हुआ बी का फॉर्मूला. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.10. इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स sinusoidally at the frequency of 2 into 10 raised to 10 hertz and amplitude is 48 volt per meter. So what is the wavelength of the wave? Second is what is the amplitude of oscillating magnetic field, यानी B naught आपको फाइंड करना है. wavelength यानी lambda फाइंड करना है. show that the average energy density of the electric field equal to the average energy density of magnetic field. So frequency is given 2 into 10 raised to 10 hertz. E naught is given 48 volt per meter. So wavelength is, main formula is C is equal to F nu. C is equal to nu lambda. F lambda की जगह nu lambda. तो lambda is equal to C by nu. 3 into 10 raised to 8 divided by frequency is 2 into 10 raised to 10. तो आंसर इज 1.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट c इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट. तो बी नॉट को सब्जेक्ट बनाओ तो ई नॉट बाई सी. ई नॉट इज 48, c we know that 3 into 10 raised to 8. तो आंसर इज 16 into 10 raised to minus 8 Tesla.
अब सी में क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपेयर करना है। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2, 1/2 into 8.85 into 10 raised to minus 12, and E naught is 48, तो ये 48 स्क्वायर, तो आंसर इज 10,195.2 into 10 raised to minus 12। पॉइंट शिफ्ट करो तो 1.0919 into 10 raised to minus 8 जूल पर मीटर क्यूब। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, तो रो बी इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, बी नॉट इज इक्वल टू 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7। फिर इसका कैलकुलेशन करो तो आपको सेम आंसर मिलेगा 1.0919 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, एंड हैंस प्रूव energy density of electric field and energy density of magnetic field both are same, rho E is equal to rho B, जो आपको प्रूव करना था। तो ये था एक्सरसाइज 8.10। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.11। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम is represented by E vector is equal to 3.1 cos 1.8y plus 5.4 into 10 raised to 6 t I cap। तो what is the direction of propagation? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो आपको यहीं से मिल जाएगा, यहां पर क्या है y, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ, और ये प्लस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज नेगेटिव y एक्सिस, यहां पे प्लस है ना तो नेगेटिव y एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नेगेटिव y एक्सिस। अगर यहां पे माइनस होता तो पॉजिटिव y एक्सिस, उल्टा लेना है आपको। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेवलेंथ। तो पहले तो जे इक्वेशन है 3.1 cos 1.8, उसको हम मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। E वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी, तो आपको 3 वैल्यूज मिलेगी। ई नॉट इज इक्वल टू 3.1, के इज इक्वल टू 1.8 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 रेज टू 6। तो सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, तो 3.1 बाई 3 इंटू 10 रेज टू 8, तो 1.03 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 टेस्ला। के इज इक्वल टू वेव वेक्टर 2 pi by lambda is equal to 1.8, so lambda is equal to 2 into 3.14 divided by 1.8, तो आंसर इज 3.49 मीटर। ओमेगा की वैल्यू फाइंड की हमने, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, बट यहां पे हम लिखेंगे 2 पाई न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू 2 पाई नीचे जाएगा, तो आंसर इज 0.86 इंटू 10 रेज टू 6 हर्ट्ज। लास्ट में फाइंड करना है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आई कैप है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाई, तो थर्ड कौन सा बाकी रहा जेड, तो बी इक्वल टू बी नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी के कैप। बी नॉट तो हमने फाइंड किया 1.03 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, और फिर ब्रैकेट पूरा जो क्वेश्चन में दिया है वो पूरा आपको यहां पे लिख देना है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इक्वेशन। एंड लास्ट एक्सरसाइज 8.12। अबाउट 5% ऑफ द पावर ऑफ 100 watt bulb is converted to visible radiation. So what is the average intensity of visible radiation? Power of bulb is 100 watt, that means 100 joule per second, and efficiency of bulb is 5%. So E is equal to 5% of 100 joule. 5% that means 5 by 100 into 100 joule. 100 cut, तो energy is 5 joule. तो at the distance of 1 meter from the bulb is, तो जो आगे भी ऐसा एक सम आ गया है, एक बल्ब है
और उसके आसपास होलो स्फीयर है, सरफेस है, और डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड बल्ब, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज रेडियस इज 1 मीटर। आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। होलो स्फीयर, तो एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, एनर्जी इज 5 जूल, पाई 3.14, रेडियस इज 1 मीटर, तो आंसर इज 0.4 वाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ एट द डिस्टेंस एट 10 मीटर, 1 मीटर की जगह 10 मीटर, तो E बाई 80, सिर्फ आपको 1 की जगह 10 लिखना है, तो आंसर 0.4 में से हो जाएगा 0.004 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये था एक्सरसाइज 8.12।